मतलब इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का इतिहास भी ये बतलाता है कि तलाक़े बिद्दत एक क्रिमिनल एक्ट है अगेंस्ट अ वुमन। आज ये सदन इस बात का फख्र कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट हजरत साहब का नाम मेरे नाम मुंह से सुनना चाहते हैं तो मैं भी हनुमान चालीसा आपके मुंह से सुनना चाहूंगी। साहब कभी दम हो तो सुना दीजिएगा। हमारे मन में तुम्हारे लिए इज्जत और बढ़ गई। Meenakshi Lekhi tweet saying, "Do I smell a rat to obfuscate the BJP National Executive meeting? Tweet? Attempts being made not to cover National Executive instead of covering some inane What issues." What is the next tweet? She says, What is the next tweet? Read the tweet. So you're saying that Read the next tweet. many What is people the at next tweet? She says, "Please read. Whoever wants to quote or play the recent tweets, please play both to avoid any spin or confusion." No, but read this tweet which says that I make no kind of indications towards Smriti ji. Why are you leaving that deliberately out? So you believe that the Why are you leaving it deliberately out? Okay. Are you telling me that a woman in this country will be violated only so that she can make a headline? Is that your charge as a man or as a journalist? No, my charge is that there are people within possibly your own party or your Don't own concoct critics things or on your the own behalf critics of so-called or own people. critics. What does Rajdeep Sardesai think? I That think- I concoct issues No, I so I think that can be Smriti in the Irani is an headlines extremely and talented be woman. violated so that Rajdeep Sardesai can ask me about it in an interview? Okay. So you think that that the Fab? What do you think about it as a man and as a journalist? I think what happened in the Fab India issue, those who tried to raise a controversy suggesting that you had deflected No, I'm attention from asking what Rajdeep Sardesai Rajdeep thinks Sardesai- about the incident. Rajdeep Sardesai thinks that Smriti Irani has every reason to raise the issue. That's it. Okay. End of story. Okay. म्यूजिक some regrets or some things that you feel कि हो सकता है मैं इसको अलग handle करती. Let me give you JNU's example. No, do you think the government could have handled if you want a JNU differently? genuine regret today, Yeah. there'll be a lot of people who will be watching me, and especially from my own fraternity, from my own support Yes. base. Our regret is consistently why would we go to the Barkha Dutt show when she demonizes all of us every day? Why is that a regret? Okay, firstly I Our would question. Firstly, I would challenge this charge of demonization, which I always have. आपने पिछले साल भी मुझे बड़ी मुश्किल से एक इंटरव्यू दिया, तब भी मैंने आपसे ये कहा that I am an individual, I am fair, I am objective. No, I think आप शायद ना समझे कि आप- no, it's you are not welcome about to your opinion. it's not about हम शायद ना समझे. I You think have that the right to disagree, I of think course. that it is all about the very fact that you would presume that हम नहीं समझेंगे shows a level of arrogance that I know what I'm doing and you No, possibly of don't course understand. not, of course I not, think not what आप जाहिर है प्रधानमंत्री के काफी नजदीक हैं। कहा जाता है कि देश के अंदर कुछ हुआ हो ना हुआ हो, विदेश के अंदर भारत की इज्जत बहुत बड़ी है जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने। गूगल को टाइप करके देखिए, गूगल के अंदर स्टूपिड टाइप करके देखिए, उसमें आता है कि दुनिया का सबसे स्टूपिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। शर्म से सर झुक जाता है। किसी ने मुझे फोन करके कहा और मैंने कल ही देखा ये, तो उसके अंदर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट स्टूपिड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड। एक दो लोगों का और नाम भी है। क्या सरकार इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही? सिर्फ बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। गूगल से पूछा, हमारे आपके आईडी गूगल। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। अब आप शब्दों का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री के बारे में कहते हैं, तो राशिद भाई एक महिला मंत्री को क्या कहते हैं अपने इस प्रश्न में? सुना जाता है कि आप मोदी जी के बड़े करीब हैं। इस विश के साथ हर दिन जीना पड़ता है। और फिर रजत जी आप कहते हैं स्मृति ईरानी को गुस्सा क्यों आता है?
लेकिन एक चीज बताइए, विवाद आपके साथ है। नरेंद्र मोदी ने सबसे कम उम्र की मंत्री बनाया, आपको एचआरडी जैसा बड़ा पोर्टफोलियो दिया, और डिग्री का विवाद, डिग्री आप ग्रेजुएट हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, लेकिन क्या खूबी लगी आप में? मैं करना चाहती हूँ, बड़ी शांति से सुन लीजिए। अशोक जी का भी सवाल शायद इस गहमा गहमी में आपने सुना नहीं। किसी ने सुना? अशोक जी ने, और महिलाएं, ये मैं क्या कह रही हूँ वो थोड़ा सुन लीजिए। अशोक जी ने मुझे देखते हुए कहा, भाई मोदी को आप में क्या खूबी नजर आई कि आपको मंत्री बनाया? मैं आपको एक जवाब दे रही हूँ। अशोक सिंघल, आप में ये हिम्मत कभी एक आदमी से पूछने की नहीं होती। पूछते हम। एक सेकेंड, आपने जिस लहजे से पूछा वो लहजा इतना गलत था कि सबने उस पर अपनी आपत्ति जताई है। ये कभी किसी औरत से ऐसे पूछते नहीं हैं। अगर आपका इशारा कुछ और है तो मैं उसका खंडन करती हूँ। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मेरा अपना एक बहुत सफल करियर मीडिया में रह चुका है। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैंने अपने पिता के नाम का सहारा लेकर इस समाज में और देश में अपनी जगह नहीं बनाई है, अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से बनाई है। मैं क्लियर कर दूं, मैंने क्या सवाल पूछा था? मैंने ये कहा राज्यसभा हारी आप। हूँ क्योंकि आज मैं गुजरात की राज्यसभा की प्रतिनिधि हूँ। देश की राज्यसभा में सबसे कम उम्र की महिला मैं हूँ। कम उम्र में सफलता की शिखर पर पहुंचना ये अभिशाप नहीं है। कोई अभिशाप नहीं है। किसी गांधी परिवार में जन्म ना लेना ये अभिशाप नहीं है। कि आप और एक लड़की जो एक ऐसे परिवार में पैदा होती है जिसके माता पिता का पहला घर तबेले के ऊपर एक कमरा होता है, उसका भारत में कैबिनेट मंत्री बनना अपराध नहीं है। कोई अपराध नहीं है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।